हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड ऑर्गेनेल्स विच आर लाइन्ड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन. सो व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? सेल के ऑर्गेनेल्स, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, राइबोसोम हो, गोल्जी बॉडी हो या लाइसोसोम, हर एक ऑर्गेनल दूसरे ऑर्गेनल से टोटली स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट होते हैं. बट फिर भी ये सारे ऑर्गेनल जो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं, ये ऑर्गेनल एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, इसीलिए हम इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं. इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो ऑर्गेनल्स हैं, फर्स्ट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड सेल मेम्ब्रेन. This is your lysosome and vacuoles. These are the organelles which are the part of the endomembrane system, because all these organelles are function in a coordinated way. That's why they are the part of the endomembrane system. इसमें हम फर्स्ट ऑर्गेनल पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Endo stands for inner, plasm means fluid, and reticulum, this is the network of tubule. So tubular network is present in the cytoplasm. So this is what? This is your endoplasmic reticulum. So this is the organelle which is lined by the single membrane. This is the largest single membrane bound organelle, right? Largest single membrane bound organelle is your endoplasmic reticulum. This endoplasmic reticulum forms the interconnected network, जो एक दूसरे से connect है. So it forms the interconnected network of the tubules. These are the cisternae and vesicles. Cisternae are nothing. These are the flattened sac-like structure. These are the flattened sac-like structure which are associated with the nucleus. Suppose this is your cell. Suppose this is your cell and this is the nucleus. This is the nuclear membrane. So this endoplasmic reticulum is in close association with the nuclear membrane. One side it is closely associated with the nuclear membrane and the other side it is associated with the plasma membrane. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस पूरी सेल में हर जगह पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एसोसिएशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों से होता नहीं, बट कहीं कहीं पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी सेल में एक्सटेंडेड रहती है फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस इज द ट्यूब्यूल्स. ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. दीज आर द ट्यूब्यूल्स, दीज आर सिस्टर्ने, एंड थर्ड वन इज द वेसिकल्स. These are round structures which pinch off from this endoplasmic reticulum or the cisternae. So these are the vesicle. These are nothing. This helps in the transportation process. All right. So cisternae जो कि flattened sac-like structure हैं, these flattened sac-like structure divides the compartment into the two. One is the internal compartment and one is the external compartment. Internal compartment which is present in the in between the cisternal space. So this is known as cisternal space, or we can say this is the cisternal lumen. And the external compartment, which is what? Which is the cytoplasm. External compartment is what? External compartment is your cytoplasm. So it divides the compartment into the two. One is the outer one, that is the cytoplasmic compartment, or the extracellular, not extracellular, or the external compartment, or one is the cisternal lumen or the cisternal space. So इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? It compose the cisternae, vesicles and the tubules, right? अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होती है. यहाँ पर देख सकते हैं हम, दिस इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सेकेंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Why this endoplasmic reticulum is rough? Because on the surface of this ER several ribosomes are present. That's why its surface slightly
rough in appearance. So that's why it is a rough endoplasmic reticulum, because of the presence of the ribosomes. These dot like structure, these are what? These are the ribosomes. इन्हीं के प्रेजेंस की वजह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ी रफ दिखाई देती है. दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. व्हाई इट इज स्मूथ? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द राइबोसोम. यहाँ पर आपको कोई राइबोसोम दिखाई नहीं दे रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज रफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स. अब इनके फंक्शन देख लेते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और राइबोसोम का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन कहाँ पर हम पढ़ते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन. अब ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों ये न्यूक्लियस से इतनी एसोसिएटेड ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है. क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस में आपका क्या है? जेनेटिक मटेरियल. एंड दिस जेनेटिक मटेरियल इज व्हाट? दिस इज योर डीएनए. डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस होता है, और मैसेंजर आरएनए से आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होगा? इस मैसेंजर आरएनए से आपके राइबोसोम्स अटैच होंगे और ये आपका प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे. सपोज यहाँ आपकी प्रोटीन बन गई है, तो ये कहाँ पर बनी है? इन राइबोसोम्स के. और ये राइबोसोम्स कहाँ पर है? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. बट सारे प्रोटीन इन राइबोसोम्स पे सिंथेसाइज नहीं होते हैं. कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं जो कहीं और सिंथेसाइज होते हैं. सपोज ऐसे प्रोटीन जिनको या तो न्यूक्लियस में जाना है और या फिर उनको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है. सो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में जो प्रोटीन्स को काम करना है, ऐसे प्रोटीन्स कभी भी इन आरईआर वाले राइबोसोम्स पे सिंथेसाइज नहीं होते हैं. बाउंड राइबोसोम्स पे सिंथेसाइज नहीं होंगे. तो फिर इनका सिंथेसिस कहाँ पे होगा? इनका सिंथेसिस होगा हमारे फ्री राइबोसोम्स में. एंड दीज फ्री राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन दी साइटोसॉल. ये फ्री राइबोसोम आपके साइटोसॉल में प्रेजेंट होते हैं. उन वहाँ से प्रोटीन सिंथेसाइज होगा और न्यूक्लियस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा. यहाँ पर उन प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है जो या तो आगे फर्दर गोल्जी बॉडी में जाने, ठीक है, या फिर उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही रह जाना है, या फर्दर लाइसोसोम्स में या किसी भी और अदर ऑर्गेनल में उनको जाना है, या फिर वो सेल मेम्ब्रेन के पार्ट है, और या फिर उनको सेल से बाहर सिक्रीट कर दिया जाएगा. तो सिक्रीटरी प्रोटीन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन या अदर लाइसोसोमल प्रोटीन्स का सिंथेसिस इन आरईआर वाले राइबोसोम्स या बाउंड राइबोसोम्स पर होता है. ठीक है. अब ये प्रोटीन्स कैसे डिफरेंट ऑर्गेनल में जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट. बट इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर इन प्रोटीन्स के पास ये जो प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो को ट्रांसलेशनली होता है. को ट्रांसलेशनली मतलब ये राइबोसोम उन प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं, साथ साथ इनका ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है. कहाँ पर? इनटू द सिस्टर्नल ल्यूमेन, राइट, इनटू द सिस्टर्नल ल्यूमेन. अब इन प्रोटीन, सपोज ये आपका कोई प्रोटीन है, तो इसके पास एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है जो इसको इसके कंपार्टमेंट में डिस्टाइंड करती है. ठीक है. कहाँ पर इसको पहुँचाना है वो ये सीक्वेंस एक तरह से समझ लीजिए इसका एक एड्रेस है. इसके पास जो एड्रेस होता है वो इसे उसके पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर पहुँचाने का काम करता है. ठीक है. सो इसके बाद यहाँ से जो प्रोटीन है वो इस सिस्टर्नल ल्यूमेन से, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देती हूँ, ये यहाँ से प्रोटीन निकलेगा और कहाँ पर जाएगा? ये वेसाइकल्स में कोड कर दिया जाएगा. अब वेसाइकल्स में ये सपोज ये आपका प्रोटीन है, इनके ऊपर कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो इन्हें फर्दर नेक्स्ट कंपार्टमेंट तक पहुँचाने का काम करते हैं. और नेक्स्ट कंपार्टमेंट हमारा कौन सा है? दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ दी गोल्जी बॉडी, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं. ये गोल्जी बॉडी है. यहाँ तक इन सिक्रेटरी वेसाइकल्स के थ्रू इस प्रोटीन को फर्दर गोल्जी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. तो उसके पास एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है जो ये बताती है कि उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही रहना है या फर्दर उसे नेक्स्ट कंपार्टमेंट में मूव करना है. तो वो सीक्वेंस हमें अभी नहीं पढ़नी है. तो ये हमारा फंक्शन हुआ आरईआर का. नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एज द नेम इंडिकेट दिस इज स्मूथ. सो दिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? इन द लिपिड चिकनी. ठीक है. स्मूथ चिकनी, तो इसी से हम लिंक करेंगे कि चिकनाई, जैसे कि लिपिड ऑयल, तो जितने भी फैटी एसिड्स या लिपिड का सिंथेसिस है वो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है.
ठीक है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द ट्यूब्यूल्स फॉर्म, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर आपके सिस्टर्ने का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्ने का नंबर बहुत ज़्यादा होगा, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब्यूल्स का नंबर आपको ज़्यादा ट्यूब्यूल्स ही देखने को मिलती हैं। सो SER लिपिड सिंथेसिस का काम तो करता ही है, साथ में ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। कैसे करता है वो मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाली हूँ। तो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्लस कैल्शियम रेगुलेशन में हेल्प करता है। अब कैल्शियम रेगुलेशन में आप मसल फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हो। मसल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फंक्शन क्या होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? इट स्टोर्स कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं। अब ये कैल्शियम आयन इस सार्कोप्लाज्म, जैसे ही मसल के पास एक्टिवेशन का सिग्नल आता है, इम्पल्स पहुंचती है, तो यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन बाहर डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज होते ही क्या होगा? आपका मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करेंगे। तो वहाँ पर कैल्शियम को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सो वो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज व्हाट? दैट इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? सो हम ब्रॉड सेंस में अब इसके फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, SER हो या RER, ये सब के सब क्या करते हैं? SER है तो वो लिपिड का सिंथेसिस करेगी, RER होगी वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगी, या फिर वो सिक्रेटेड प्रोटीन बनाएगी, या फिर ऐसे प्रोटीन्स बनाएगी जिनको किसी जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, या जो लाइसोसोम में जिनकी नीड होती है। तो वो मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बना सकती है, कुछ ऑर्गेनेल के प्रोटीन भी बना सकती है, और सिक्रेटरी प्रोटीन भी फॉर्म कर सकती है। बट ऐसे प्रोटीन जिनको न्यूक्लियस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, उन प्रोटीन का सिंथेसिस आपके फ्री राइबोसोम पे होगा, बाउंड राइबोसोम पे उनका सिंथेसिस नहीं होगा, ओनली फ्री राइबोसोम पे उनका सिंथेसिस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके डिटॉक्सिफिकेशन में कैसे हेल्प करती है। सपोज कोई केमिकल है, या कोई पेस्टिसाइड है, या कोई ऐसा कार्सिनोजन है, वो बॉडी में एंटर हो गया, जैसे ही वो लिवर के अंदर आता है, लिवर में आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, उस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, ये एंजाइम उस हाइड्रोफोबिक केमिकल को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, उसको एक ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है जो कि मोर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। अब व्हेन इट इज अ वाटर सॉल्युबल, देन इट इज इजीली एक्सक्रीट आउट फ्रॉम योर बॉडी। सो उस हाइड्रोफोबिक केमिकल को या उस कार्सिनोजन को वो इसने इजीली एक्सक्रीटेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट करके वो आपके बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है। सो ये किसका फंक्शन हुआ? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है, कैल्शियम रेगुलेशन में हेल्प करती है, और लिपिड सिंथेसिस करती है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगी। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी बॉडी भी हम इसे बोल सकते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी हम इसे बोलते हैं। सो दिस गोल्जी अपैरेटस इज डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो गोल्जी इन 1898। This Golgi apparatus or Golgi body is also known as lipochondrion, idiosome, Dalton complex और the Baker's body। इन्हीं साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी की थी, इसका डीप स्ट्रक्चर की स्टडी की थी, इसलिए हमने इनको ये नाम दिए हैं। प्लस लिपिड के सिक्रीशन में ये हेल्प करता है, इसलिए इसको लाइपोकॉन्ड्रियन कह दिया हमने। ठीक है, सो गोल्जी अपैरेटस होता है सभी यूकैरियोटिक सेल में हमें देखने को मिलेगा, जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें हमें गोल्जी अपैरेटस मिलता है। लेकिन कहाँ नहीं मिलेगा? RBC में नहीं मिलेगा। प्लांट्स में जो सीव ट्यूब्यूल होती हैं उनकी सेल्स में, जो मैच्योर सीव ट्यूब्यूल सेल्स हैं, वहाँ पर गोल्जी अपैरेटस एब्सेंट होता है। स्पर्म सेल में भी गोल्जी अपैरेटस एब्सेंट होता है। ठीक है, क्यों एब्सेंट है मैं बताने वाली हूँ। RBC तो वैसे ही इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होगा, तो गोल्जी अपैरेटस भी इस सेल के अंदर एब्सेंट होता है, बिकॉज इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी करना। इसीलिए यहाँ से सभी सेल ऑर्गेनल यहाँ से बाहर निकल दिए जाते हैं, और ये केवल ब्लड को कैरी करने का काम करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो यहाँ पर ये गोल्जी अपैरेटस एब्सेंट होता है। अब ये गोल्जी अपैरेटस का ओरिजिन कैसे हुआ? सो इसके लिए हमारे पास 3 थ्योरी हैं। सपोज दिस इज योर सेल, राइट?
सो या तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके इन्वेजिनेशन से इसका सिंथेसिस हो जाए, या फिर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इवेजिनेशन से, बाहर के साइड इवेजिनेशन से इस गोल्जी बॉडी का सिंथेसिस हो जाए, या फिर जो न्यूक्लियस है इसी के साथ साथ में आपका क्या प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपके जो वेसाइकल्स, सिक्रेटरी वेसाइकल्स बना रहे हैं, ये उसके मेम्ब्रेन प्रोटीन को कैरी करते हैं और क्या करते हैं, इन गोल्जी बॉडी का सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। तो जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू है गोल्जी बॉडी के ओरिजिन के लिए, तो वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये माना जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही गोल्जी बॉडी का ओरिजिन होता है। हाँ, गोल्जी बॉडी इटसेल्फ भी डिवाइड करता रहता है, बट जो मोस्टली एक्सेप्टेड व्यू है वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी का ओरिजिन होता है। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो ये बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट टू दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है। मैंने कहा आपको दीज आर दी पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। हर एक सिस्टम एक कोऑर्डिनेटेड, हर एक ऑर्गेनल एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहा है। सो कोऑर्डिनेटेड वे में काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सेक्रेटरी वेसाइकल्स आए, वो सेक्रेटरी वेसाइकल्स कहाँ पे आ गए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेक्रेटरी वेसाइकल, और यहाँ से इनको कहाँ दे दिया जाएगा, सॉरी मैंने नीचे बना दिया, ये इसको यहाँ पे, ये इस गोल्जी बॉडी को, ये सेक्रेटरी वेसाइकल्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सो एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे। तो ये बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हम ये कहें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड बिल्कुल ये गोल्जी बॉडी होती है। यहाँ हम देख सकते हैं इसके डायग्राम में, दिस इज व्हाट, दिस इज योर गोल्जी बॉडी। बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में ही ये गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है। अगर हम गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर देखें, दिस इज मेड अप ऑफ द सिस्टर्नल सैक। दीज सिस्टर्नेज आर नथिंग, दीज आर दी फ्लैटेंड डिस्क शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सिस्टर्ने है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इस गोल्जी अपैरेटस में प्रेजेंट होती हैं। एक स्टैक के अंदर इनका नंबर वेरिएबल होता है, बहुत ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है, बट अराउंड 8 to 9 इनका नंबर एक स्टैक के अंदर हो सकता है। ठीक है, इनका जो डायमीटर है दैट इज़ अराउंड 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस सिस्टर्नल गोल्जी बॉडी के अंदर जो सिस्टर्ने हैं, इनके अलावा भी इनके अंदर वेसाइकल्स भी प्रेजेंट है, प्लस कुछ ट्यूब्यूल्स और वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ट्यूब्यूल्स आर नथिंग, दीज आर व्हाट, दीज आर दी फेनेस्ट्रेशन इन दी सिस्टर्ने। सिस्टर्ने से ही नीचे एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल यहाँ से निकला हुआ होता है जो इस गोल्जी अपैरेटस में प्रेजेंट होगा। यहाँ से जो वेसाइकल है, जो भी इन्होंने अपना प्रोटीन या लिपिड जिसको भी ये पैकेज कर रहे हैं, वो इन ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स के थ्रू फर्दर अपने नेक्स्ट टारगेट ऑर्गन में या फिर उसको सिक्रेट आउट कर दिया जाता है, या वो प्लाज्मा में जहाँ पर भी उसे जाना है इन ट्रांसपोर्ट वेसाइकल में पैकेज करके उन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। प्लस वैक्यूल्स, ये क्या होती है, ये वैक्यूल्स ये वेसाइकल्स ही हैं एक तरीके से, बट समवॉट लार्जर देन दी वेसाइकल्स। ठीक है, इनका जो साइज होता है वो थोड़ा बिगर होता है, और ये वैक्यूल्स ही फर्दर आगे जाके आपके लाइसोसोम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करती हैं। कौन, ये जो वैक्यूल्स होती हैं यही आगे जाके लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर हम एक गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर देखें कि ये जो सिस्टर्नेज हैं, ये सिस्टर्ने क्या करेंगे, इनमें क्या क्या पार्ट है, इसको हम ब्रॉडली देखें तो इसमें 2 पार्ट है, एक इसका सिस फेज है, 2 फेजेस हैं, एक इनके ट्रांस फेजेस हैं। ये नाम हमने क्यों दिए हैं, क्या इनमें डिफरेंस होता है, तो जो सिस फेज है ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सिस फेज हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एसोसिएशन में होगी या बिल्कुल उसके नियर बाय होगी। वो फेज गोल्जी बॉडी की, उसे हम बोलते हैं सिस फेज, या हम इसको कॉन्वेक्स फेज भी बोलते हैं, या हम इसको फॉर्मिंग फेज बोलते हैं, फॉर्मिंग फेज। ठीक है, क्यों उसको फॉर्मिंग फेज कहा है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन आ रहा है वेसाइकल्स में कोट होके, तो ये यहाँ पे इस सिस फेज में ही जाके उससे फ्यूज हो रहा है। सो दैट्स वाई दिस इज अ फॉर्मिंग फेज, सिस फेज और द कॉन्वेक्स फेज। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सिस फेज, फॉर्मिंग फेज और दी कॉन्वेक्स फेज। क्यों है ये फॉर्मिंग फेज, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसाइकल्स आ रहे हैं वो यहीं इसी फेज पे आके फ्यूज होते हैं और अपना जो भी मटेरियल वो लेके आ रहे हैं वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ से वो आगे ट्रांसफ़र होता है। ये जो बीच वाली सिस्टर्ने होते हैं उनको हम बोलते हैं मीडियन, क्योंकि मिडल में प्रेजेंट है। सो दीज आर व्हाट दी, दीज आर दी मीडियन सिस्टर्ने। ठीक है,
और इसका जो ऑपोजिट से ऑपोजिट फेज है, लास्ट वाला फेज है, इसको हम बोलते हैं ट्रांस फेज और द मैच्योरिंग फेज। ठीक है, फाइनल इसका फेज है, यहाँ से जो भी उस प्रोटीन या लिपिड जो भी है उसकी सॉर्टिंग होती है, पैकेजिंग होती है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं और उसके बाद यहाँ से ट्रांस फेज से उन्हें सिक्रीटरी वेसिकल में फिल करके उन्हें फर्दर आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। सो दैट्स वाई दिस इज द ट्रांस फेज और द मैच्योरिंग फेज। ऑलराइट, ट्रांस फेज और द मैच्योरिंग फेज। अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। गोल्जी एपरेटस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बताया मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, जो भी प्रोटीन और लिपिड्स SER या RER बना के गोल्जी बॉडी को सेंड कर रही है, उनके अंदर उसमें मॉडिफिकेशन करना। ऐसा नहीं है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मॉडिफिकेशन नहीं होता है, यहाँ पर भी प्रोटीन में मॉडिफिकेशंस होते हैं, यहाँ पर भी प्रोटीन में शुगर मॉइटीज़ को ऐड किया जाता है। ठीक है, या फिर उनके अंदर अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करना है तो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ किया जाता है। प्रोटीन को एक प्रॉपर फंक्शनिंग प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है कि उसका एक प्रॉपर शेप हो, प्रॉपर बॉन्डिंग हो, प्रॉपर मॉलिक्यूल जो उस पर अटैच होने वो हो, या उसमें से कोई मॉलिक्यूल हमें हटाना है, उसका क्लीवेज हो, तो वो सॉर्टिंग, वो उसका फाइनल फंक्शन यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी किया जाता है। लेकिन फिर भी आगे जो उसका फर्दर सॉर्टिंग, पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन होता है फाइनल, वो गोल्जी एपरेटस में होता है। ठीक है, वो गोल्जी एपरेटस में किया जाता है। यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड का मॉडिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करना है तो यहाँ पे उसके अंदर प्रोटीन के अंदर आपका ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, एक ऐसा प्रोटीन है। अब यहाँ पे उसके अंदर अगर आपने एक शुगर मॉइटी को ऐड कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे आप शुगर को ऐड कर रहे हो तो आपने क्या फॉर्मेशन कर लिया, ग्लाइकोप्रोटीन बना लिया। ठीक है, या कोई लिपिड है, उस लिपिड के अंदर अगर आप शुगर को ऐड कर रहे हो तो वो ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन हो गया। या फिर प्रोटियोग्लाइकन, पॉलीसेकेराइड्स में हमने पढ़े प्रोटियोग्लाइकन, तो ये प्रोटियोग्लाइकन्स का फॉर्मेशन भी यही गोल्जी बॉडी में कर दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है गोल्जी बॉडी का, अभी मैंने आपको बताया। जैसे ही कोई भी जो भी वेसिकल होती है, सिक्रीटरी वेसिकल्स या जो भी प्रोटीन्स या लिपिड्स को कैरी कर रही है, वही वेसिकल्स आगे फ्यूज़ होके आपका या वैक्यूल्स जो होते हैं वो आपका लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी करते हैं। मतलब एक लाइसोसोम का अगर हम देखें उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो वो किससे होता है, वो आपके गोल्जी बॉडी से होता है। गोल्जी बॉडी से ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्लस जो प्लांट्स में रूट हेयर्स हैं वहाँ पर उनका फॉर्मेशन करने का काम भी आपका गोल्जी एपरेटस का है, या फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। अभी मैंने आपको बताया कि इस मैच्योर स्पर्म के अंदर गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर गोल्जी बॉडी ने क्या कर दिया है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन कर दिया। ये स्पर्म का हेड है। ठीक है, सो यहाँ पे जो एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द गोल्जी बॉडी। एक्रोसोम का फॉर्मेशन किससे हुआ, गोल्जी बॉडी से होता है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्जी बॉडी। प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, उसमें मॉडिफिकेशन करता है और फाइनल उनकी पैकेजिंग करता है। ठीक है, प्रोटीन हो या लिपिड हो, उनकी पैकेजिंग करने का काम भी गोल्जी बॉडी का ही होता है। ठीक है, उसको मेम्ब्रेन के पास जाना है या कहाँ पे वो प्रोटीन जाना है या सिक्रेशन करना है। ठीक है, तो उनको वो वेसिकल्स में कोट करके, और ये प्रोटीन्स को वेसिकल में कोट कर देगा फाइनल मॉडिफिकेशन के बाद, और उन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा पर्टिकुलर मेम्ब्रेन तक या फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनल तक। ऑलराइट, तो ऐसे ये एक गोल्जी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस हमने पढ़े। नेक्स्ट हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो पार्ट है ऑर्गेनल, दैट इज योर लाइजोसोम्स। ठीक है, लाइज का मतलब ही होता है किसी चीज़ का ब्रेक डाउन करना। तो आगे हम इसके फंक्शंस में देखेंगे। लाइसोसोम बहुत पुराना नहीं है, ये बहुत रिसेंटली ही डिस्कवर हुआ है। क्रिस्टन डी डवे ने इन्हें डिस्कवर किया था 1955 में। 1950s में एक्चुअली ये डिस्कवर हुआ था, यहाँ 55 मैंने लिख दिया है, बट मैंने कई जगह पढ़ा है 1950 या 1949 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो वो दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट हाँ ये बहुत रिसेंटली ही डिस्कवर हुआ है। क्रिस्टन डी डवे ने लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था। These are nothing, these are what? These are the membrane bound vesicles, or we can say these are the membrane bound vacuole भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये somewhat in bigger size, ये एक membrane bound vesicle होती है। ठीक है, जो कि गोल्जी बॉडी से पैकेजिंग के दौरान इसका सिंथेसिस होता है।
इज इट क्लियर? इसका साइज अगर हम देखें सो दैट इज अराउंड 0.2 टू 0.8 माइक्रोमीटर, इतना ही साइज का ये होता है। और मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ठीक है, ये जो एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है इसके अंदर भरा हुआ क्या होता है, ये जो वैक्यूल है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नथिंग, दीज आर व्हाट, दीज आर दी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रो मतलब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, लाइटिंग मतलब लाइसिस, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करने का काम कर रहे हैं। तो ये एंजाइम क्योंकि हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इसीलिए हम इन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये एंजाइम अगर हम इनका पीएच देखें, एक लाइसोसोम का अंदर फ्लूइड का जो पीएच होता है दैट इज 5 pH, मतलब ये एंजाइम्स एसिडिक पीएच के ऊपर फंक्शनल होते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज हाइड्रोलेजेस आर आल्सो नोन एज एसिड हाइड्रोलेजेस, एसिड हाइड्रोलेजेस। व्हाई? बिकॉज दीज आर एक्टिव ऑन एसिडिक pH 5 पे ये एक्टिव होते हैं। सो कौन कौन से वेराइटी ऑफ हाइड्रोलेजेस आर प्रेजेंट, ठीक है। सो कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ मैंने यहाँ एग्जांपल दिए, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, न्यूक्लियसेस, फॉस्फेटेज, सल्फेज, ऐसे बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। सो एज अ नेम इट, लाइपेजेस विच ब्रेक डाउन लिपिड, ठीक है, प्रोटीएजेस जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करेंगे, न्यूक्लियसेस जो न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन करते हैं, फॉस्फेटेज वो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने का काम करते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी आपको इनको फॉस्फेट ग्रुप मिलता है वहाँ से उसको रिमूव कर देते हैं। सो ये सारे के सारे एंजाइम एक एसिडिक पीएच पर ही एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगर ये लाइसोसोम बर्स्ट हो जाए, ठीक है, अगर ये अपने नॉट बर्स्ट हो जाए, अगर हम सोचें ये लीकी है, सपोज ये एंजाइम, कुछ एंजाइम्स एसिड हाइड्रोलेसिस जो है वो हमारे साइटोप्लाज्म में आ गए, तो साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या होगा, क्योंकि ये तो हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस करने का काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो साइटोप्लाज्म का पीएच होता है वो न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन होता है, अराउंड 7.2 और 7.3 के अराउंड होता है। अब ये एंजाइम्स तो क्योंकि एक्टिव है किस पर, pH 5 पर एक्टिव है, ठीक है, तो बाहर आने पे इसको pH क्या मिलेगा, 7.2, तो वहाँ पर तो ये उतने फंक्शनल होंगे नहीं, तो इसलिए ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं अगर ये थोड़ा लीकी है, ठीक है। बट आगे हम देखेंगे अगर ये लाइसोसोम बर्स्ट हो जाए देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। सो उससे पहले हम देख लेते हैं कि लाइसोसोम्स में क्योंकि डाइजेशन का काम हो रहा है, डिफरेंट यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो कौन कौन से डाइजेशन करते हैं। इंपॉर्टेंट है कि ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, दोनों ही मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम्स में किया जाता है, ठीक है। इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर से ही अगर इसके पास कोई बायोमोलिक्यूल्स या कोई ऑर्गेनेल आ रहा है तो इससे डाइजेस्ट करता है, या फिर सेल के बाहर की साइड। अब सेल के बाहर की साइड से क्या होगा, या तो कोई बॉर्न आउट सेल होगी, ठीक है, या फिर कोई बैक्टीरिया आ गया है, या कुछ और मटेरियल जिसको कि हमें डिग्रेड करना है उनको यहाँ पे अपटेक कर लिया जाएगा। अपटेक कैसे करते हैं वो यहाँ पे मैंने इस पिक्चर के थ्रू आपको दिखाया हुआ है। सपोज यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है, जैसे ही सेल ने उस बैक्टीरिया को एनकाउंटर किया, सेल अंदर के साइड इन्वेजिनेट होना स्टार्ट होती है, ठीक है। इन्वेजिनेट होके यहाँ से ये सेल पिंच ऑफ हो जाएगी और एक वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगी, इसे हम क्या बोलते हैं, फैगोसोम। क्या बोलेंगे इसे, फैगोसोम, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखा है लाइसोसोम शोज पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब मैनी, ठीक है, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, मतलब एक लाइसोसोम्स की बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। तो जैसे ही बैक्टीरिया अंदर आया और इसने इस फैगोसोम का फॉर्मेशन किया, अब ये जो लाइसोसोम है इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम। अलग अलग टाइप्स हैं लाइसोसोम्स के, क्योंकि मैंने बताया भी कि पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। सो पॉलीमॉर्फिज्म शो करेंगे प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शरी लाइसोसोम, सो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। सो जैसे ही बैक्टीरिया अंदर आया, ठीक है, उसे वेसिकल में कोट कर लिया गया, इसको हम एंडोसोम या फैगोसोम बोलते हैं, ठीक है, इंटरनलाइज कर लिया गया। फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस, खाने का काम करती है, सेल ईटिंग का काम करती है, जैसे मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है उसको एनगल्फ करने का काम करती है, तो वही यहाँ पर भी बैक्टीरिया को सेल ने एनगल्फ कर लिया, फैगोसाइट्स कर लिया, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी उसको हम बोलते हैं फैगोसोम। इस फैगोसोम से प्राइमरी लाइसोसोम आके फ्यूज हो जाता है, तो जैसे ही ये फ्यूजन होगा, यहाँ पर जो इसके अंदर एसिड हाइड्रोलेजेस हैं वो इस बैक्टीरिया के ऊपर अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे।
उसको डिग्रेड कर देंगे, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही ये वाली जो स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फैगोलाइसोसोम, क्योंकि फैगोसोम और लाइसोसोम ये दोनों आके क्या हो गए, फ्यूज हो गए, इनका फ्यूजन हो गया, इनके फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुई दैट इज योर फैगोलाइसोसोम। इसे ही हम सेकेंडरी लाइसोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फैगोसोम है और लाइसोसोम, इन दोनों को मिला के जो स्ट्रक्चर बना उसे हमने क्या कहा, फैगोलाइसोसोम या फिर सेकेंडरी लाइसोसोम। अब इस बैक्टीरिया का डाइजेशन हो गया। ठीक है, अब बैक्टीरिया का डाइजेशन तो हो गया, लेकिन अब कुछ इसमें जो डेब्रिस बच गया है, उसके बाद जो लाइसोसोम अब आपके सामने आ रहा है दैट इज योर टर्शरी लाइसोसोम। ठीक है, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, रेजिडुअल बॉडी। रेजिडुअल बॉडी, वाई इट इज अ रेजिडुअल बॉडी, क्योंकि अब ये वो डेब्रिस लेके जा रही है, कहाँ तक लेके जाएगी, ये सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचाएगी, और वहां पर एक्सो मतलब बाहर के साइड, एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू इसे बाहर रिलीज कर देगी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर रेजिड्यू, रेजिड्यू को लेके आ रही है, जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है ये इसके अंदर वही प्रेजेंट है, अब उसे लाके बाहर वो सिक्रेट आउट कर देगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया भी हो सकता है या कोई अदर बायोमोलिक्यूल भी हो सकता है, जिसको फैगोसाइट्स करके सेल उसे फर्दर कंपोनेंट्स में डिवाइड करके डिग्रेड करके उसे सेल के बाहर छोड़ देती है एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। राइट, तो ऐसा नहीं है कि सेल केवल बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करिए, अदर बायोमोलिक्यूल्स को भी डाइजेस्ट करने का काम कर सकती है या ऑर्गेनेल को भी डाइजेस्ट कर सकती है। ठीक है, उस केस में हम इसे बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटो का मतलब सेल्फ। ठीक है, उसी के ऑर्गेनेल को, जिस सेल के अंदर, सपोज ये आपका सेल है, ठीक है, ये कोई लाइसोसोम है, अगर इस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और या फिर अदर कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या और दूसरे ऑर्गेनेल हैं। अब इन वेसाइकल्स में भी प्रोटीन्स जो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट, और कुछ भी चीज़ है, जो भी ऑर्गेनेल है, ठीक है, इनका नंबर भी सेल में बहुत ज़्यादा होता है। सपोज वो डैमेज हो गए हैं, ठीक है, या फिर उनकी एजिंग हो गई है, तो ऐसे ऑर्गेनल्स को हमें क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, उनको डिग्रेड करना है। तो ऐसे ऑर्गेनल को डिग्रेड करने का काम किसका होगा, इस लाइसोसोम का। ठीक है, ये ऑर्गेनल जाके लाइसोसोम से फ्यूज हो जाएंगे और उनके जो एसिड हाइड्रोलेजेस हैं वो उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑटोफेजी। जिस सेल में ये प्रेजेंट है उसी सेल के ऑर्गेनल्स को वो फैगोसाइट्स करके उन्हें डैमेज कर रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द ऑटोफेजी। ठीक है, तो जो भी, और सपोज अगर ये कोई सेल है, इसके बाहर के साइड में कुछ सेल्स प्रेजेंट है, ये वॉर्न आउट सेल्स हैं या डेड सेल्स हैं, ठीक है, या कोई और अदर मटेरियल है, वो भी इनके अंदर फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू अंदर आता है और इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी लाइसोसोम का काम होता है, ऑटोफेजी, ये उसी सेल के ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी आपने सुना होगा कि हम लाइसोसोम्स को क्या और बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स, सुसाइडल बैग्स मतलब आत्मघाती। ठीक है, सो ये आत्मघाती बैग्स या सुसाइडल बैग्स क्यों बोला जाता है इनको, क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब सेल में डैमेज होता है या किसी अदर रीज़न से ये सेल लाइसोसोम जो होता है ये बर्स्ट हो जाते हैं। तो अब जैसे ही लाइसोसोम बर्स्ट होगा, इसके अंदर से सारे मटेरियल सेल के बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और वो पूरी की पूरी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, या उस जिस टिश्यू में ये प्रेजेंट है उस पूरे टिश्यू को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो सेल्फ टिश्यू या सेल का जब डिस्ट्रक्शन करते हैं तो उनको हम क्या कह देते हैं, सुसाइडल बैग्स। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लाइसोसोम्स में ये जो रेजिडुअल बॉडीज बन रही हैं, कभी कभी क्या होता है, ये रेजिडुअल बॉडीज उस सेल में ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होती है, स्टोरेज होने लग जाती है। बाहर के साइड इनका एक्सोसाइटोसिस होने के बजाय उसी सेल के अंदर धीरे धीरे इनका एक्यूमुलेशन होता जाता है, तो उससे भी कभी कभी कुछ डिजीज बन जाती है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। फॉर एग्जाम्पल पॉम्पेज डिजीज। इस पॉम्पेज डिजीज में क्या होता है, ग्लाइकोजन का स्टोरेज होना स्टार्ट हो जाता है। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, क्या किसका सिंथेसिस होगा, ग्लूकोज का। ठीक है, अब क्योंकि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ एंजाइम में जो है उनमें म्यूटेशन हो गया है सपोज, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो ग्लाइकोजन है इनका ब्रेकडाउन नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, और ग्लूकोज नहीं बनेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। सपोज जहाँ पर भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा, जिन सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे वो सेल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। सपोज मसल सेल है, अगर उनके अंदर ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज आ गई, ग्लाइकोजन
का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है, तो मसल सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं पॉम्पेस डिजीज। दूसरी डिजीज है टे सैक डिजीज, ठीक है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, गैंग्लियोसाइड्स का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, नर्व सेल्स के अंदर गैंग्लियोसाइड्स का डिपोजिशन हो जाता है, इनका प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, इसीलिए उन नर्व सेल्स में गैंग्लियोसाइड का डिपोजिशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है और उन नर्व सेल्स की धीरे धीरे डेथ होती जाती है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द टे सैक डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनल, दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल मतलब एम्प्टी स्पेस, ठीक है, दिस इज नथिंग, एक सिंगल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर कुछ मटेरियल्स प्रेजेंट है या कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है, दिस इज व्हाट, दिस इज द वैक्यूल। हाँ, एक चीज़ और मैं लाइसोसोम में आपको बताना भूल गई हूँ, लाइसोसोम्स के अंदर एसिड हाइड्रोलाइसिस मैंने आपको बताया था कि ये pH 5 पे ही काम करते हैं, ठीक है, तो इनका pH मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ पंप्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटोन पंप्स, जो इन प्रोटोन्स को साइटोप्लाज्म से अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं बात करती हूँ पंप्स की, पंप्स का मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो रहा है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन प्रोटोन्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। सो जब भी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब यहाँ पर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एटीपी का यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एटीपी का ब्रेकडाउन होगा और साइटोप्लाज्म से H+ आयन अंदर लाइसोसोम में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसी तरह यहाँ पर एक एसिडिक एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाता है लाइसोसोम्स में। वैक्यूल भी क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, इसके बाहर के साइड में ये एक सेल है, सपोज यहाँ पे मैंने एक प्लांट सेल को दिखाया हुआ है, इसके अंदर एक वैक्यूल प्रेजेंट है, दिस इज द मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, इसके बाहर के साइड एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और बीच में इसका फ्लूइड है, राइट। अब इस वैक्यूल के अंदर आपका वाटर भी हो सकता है, सैप भी हो सकता है, डिफरेंट एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि सेल के लिए हार्मफुल हैं, ऐसे मटेरियल्स का भी यहाँ पे स्टोरेज हो सकता है, या डिफरेंट आयंस हैं वो भी इस वैक्यूल के अंदर स्टोर हो सकते हैं। अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को देखें तो इन दोनों सेल के अंदर इस वैक्यूल के साइज में डिफरेंस आता है। कैसे डिफरेंस आता है, सपोज दिस इज योर एनिमल सेल एंड दिस इज योर प्लांट सेल, यू कैन सी हियर this is the nucleus and this is your plant vacuole, right? So around 80 to 90% स्पेस यहाँ पे इस वैक्यूल ने कवर किया हुआ है, बट एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता है। सपोज दिस इज योर न्यूक्लियस, तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे साइज की वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, नंबर इनका बहुत ज़्यादा हो सकता है बट साइज इनका स्मॉलर होता है, बट प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का साइज समवॉट बिगर देन दी एनिमल सेल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्लांट और एनिमल्स, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन्हीं में ये वैक्यूल देखने को मिलती है, फंजाई और कुछ बैक्टीरिया में भी देखने को मिलती है, डिफरेंट प्रोटिस्ट के अंदर ये वैक्यूल देखने को मिलती है, ठीक है। सो दिस वैक्यूल इज लाइंड बाय द मेम्ब्रेन एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, दैट वैक्यूल मेम्ब्रेन इज नोन एज व्हाट, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द टोनोप्लास्ट। इसी वैक्यूल की मेम्ब्रेन में सेल सैप भरा हुआ रहता है, ठीक है, उस सैप के अंदर ये सारे कंटेंट्स हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, डिफरेंट फ्लूइड, रेजिन्स, गम्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो इस सेल सैप के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी जो मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज टोनोप्लास्ट। इस टोनोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स ही ऐसे हैं जो इन मटेरियल्स को अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, बिकॉज इट इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सभी मॉलिक्यूल तो उसमें से जा नहीं सकते, तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिन्हें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प से इसके अंदर पहुंचाया जाता है, क्योंकि ये स्टोरेज का काम कर रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स को स्टोर करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी ये पंप्स ही वर्क करते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को अंदर पहुँचाया जाता है, क्योंकि इसका काम स्टोरेज का होता है, इसलिए यहाँ पर हमेशा आयंस हो या अदर मटेरियल की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई है, तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उन आयंस को इस वैक्यूल के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अमीबा के लिए तो हुई बात प्लांट्स की, ठीक है। एनिमल्स के अंदर भी ऐसे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो वैक्यूल्स होते हैं इन्हें हम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या फिर हम इन्हें फूड वैक्यूल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये जो प्रोटिस्ट हमने पढ़े हैं, पैरामीशियम है, अमीबा है, ठीक है, उनमें ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेजर फंक्शन किस में होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। And what is osmoregulation?
ऑस्मो स्टैंड्स फॉर दी ऑस्मोलैरिटी। रेगुलेशन मतलब उसे रेगुलेट करना। किसी भी सेल के अंदर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करने का काम इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का होता है। ठीक है, ठीक है। ऑस्मोटिक इम्बैलेंस ना हो, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहे, तो उसके लिए इसके अंदर, इन एनिमल्स के अंदर एक कॉन्ट्रेक्टाइल, ये यहाँ पे जो दिखाई हुई है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, सो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। सपोज ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जो कि हाइपोटोनिक है, वाटर बाहर से, अब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होगा, हाइपो स्टैंड्स फॉर दी लो, मतलब ऐसे फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो जब लो कॉन्सेंट्रेशन होगी मतलब वहाँ पर वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो वाटर बॉडी के अंदर आना स्टार्ट होगा। जब वाटर बॉडी के अंदर आएगा तो उसको बैलेंस करने का काम कौन करेगा, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करेंगे। इस एक्सेस ऑफ वाटर को इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लिया जाएगा और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन पे आके अपना जो फ्लूइड है उसे बाहर एक्सक्रीट आउट कर देगी। यहाँ पे आके वैक्यूल बस्ट हो गई और अपने जो वाटर था वो बाहर एक्सपेल आउट कर दिया। तो इस तरीके से ये अपना ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करती है। सपोज एक अमीबा है जो कि फ्रेश वाटर में रह रहा है, ठीक है। अब इस अमीबा के अंदर तो आपकी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बन गई क्योंकि ये आप उसको ऑस्मोटिक बैलेंस करने का काम करती है, ठीक है। और अब अगर हम इसे एक मरीन वाटर में ट्रांसफर कर दें, मरीन वाटर के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दें, तब क्या होगा, अब ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इस अमीबा से डिसअपियर हो जाएगी। क्यों डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि मरीन वाटर में क्या है, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत हाई है। अब तो यहाँ से वाटर का लॉस होगा, ठीक है, वाटर अंदर तो आएगा नहीं बल्कि बॉडी से वाटर का लॉस होगा। तो अब यहाँ पे इसको इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि उसमें वो ऐसे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी रह रही है जहाँ पे बाहर वाटर की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो इसलिए बॉडी से ज़्यादा वाटर तो उसको बाहर निकालना नहीं है, तो इसीलिए ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इस अमीबा के अंदर डिसअपियर हो जाएगी। फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिलेगी, बट अगर आप इसको मरीन वाटर में ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। सो इन अमीबा और इन द पैरामीशियम इट हेल्प्स इन द ऑस्मो रेगुलेशन, राइट, ठीक है। कुछ प्रोटिस्ट में आपको फूड वैक्यूल भी देखने को मिलती है। एज द नेम इट का, दीज आर दी फूड वैक्यूल्स, ठीक है। सो फूड वैक्यूल कैसे, सपोज ये इसकी ओरल ग्रूव है, यहाँ से कोई फूड मटेरियल अंदर आया और उनको इन वैक्यूल के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। सो दीज आर व्हाट, क्योंकि ये फूड को कैरी कर रही हैं, दैट्स वाई दीज आर दी फूड वैक्यूल, और ये उस फूड को वहाँ पे सर्कुलेट करने का काम करती है। यहीं पे इनका डाइजेशन भी होता है, यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट है जो उनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो दैट्स वाई दीज आर नोन एज द फूड वैक्यूल, ठीक है। इनका साइज समवट छोटा होता है, ठीक है। वही फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये फूड को अंदर एनगल्फ कर लेते हैं और यहाँ पे इनका डाइजेशन होता है, फर्दर इनका सर्कुलेशन होता है और उसके बाद इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी इन्हीं वैक्यूल्स के थ्रू कर दिया जाता है। सो काफ़ी कुछ फंक्शंस तो मैंने आपको साथ के साथ ही बता दिए हैं, बट अगर हम देखें नटशेल में क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं, सो स्टोरेज ऑफ द सैप, ठीक है, सॉल्ट्स का स्टोरेज करती है, वाटर का स्टोरेज करते हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स भी स्टोर करते हैं, ठीक है। जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं उन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स को स्टोर करने का काम आपकी वैक्यूल करती है। मैं प्लांट्स में बता रही हूँ, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स को स्टोर किया जाता है, शुगर को स्टोर करते हैं, लिपिड, प्रोटीन, इन सब का स्टोरेज इस वैक्यूल में किया जाता है, ठीक है। प्लस जो भी वेस्ट मटीरियल है या जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे वेस्ट मटेरियल या हार्मफुल प्रोडक्ट को भी वो क्या करते हैं, वैक्यूल अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं ताकि बाकी सेल्स को हार्म या दूसरी सेल्स को हार्म ना पहुंच सके, ठीक है। या एक्सेस ऑफ वाटर को भी ये स्टोर करते हैं। अब वाटर को स्टोर करेंगे तो क्या करेंगे, ये वैक्यूल का क्या साइज़ होगा, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वैक्यूल का साइज़ सेल की नीड के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, ठीक है, वो फिक्स नहीं होता, जैसे कि सेल की नीड होती है उसके अकॉर्डिंगली इनका साइज़ भी वेरिएबल होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल इस वैक्यूल के अंदर एंटर हुआ, जैसे ही एंटर होगा ये सेल क्या करेगी, ये फूल जाएगी और ये अपनी वॉल के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और वी कैन से दिस इज़ द टर्गर प्रेशर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी प्रेशर की वजह से सेल अपना प्रॉपर शेप मेंटेन कर पाती है, राइट। सेल का जो प्रॉपर शेप होता है वो इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से मेंटेन रहता है। अगर ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ना हो तो क्या होगा, सेल फ्लैसिड हो जाएगी, ठीक है। सो फ्लैसिड सेल क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे सेल के अंदर कोई प्रेशर नहीं, उसकी वॉल के ऊपर प्रेशर नहीं डल रहा है,
ठीक है, वाटर उसमें नहीं है, तो उस टाइम पे वो सेल कैसी होती है, फ्लासिड हो जाती है। बट टर्गर प्रेशर अगर उसमें प्रॉपर टर्गर जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना है, तो सेल क्या रहेगी, जो सेल है वो फ्लैसिड नहीं होगी और वो अपना प्रॉपर शेप को मेंटेन कर पाएगी, राइट। सो शेप की मेंटेनेंस में भी ये टर्गर प्रेशर या ये हम कहें ये वैक्यूल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एनिमल्स के अंदर फूड सप्लाई करने में, फूड के रोटेशन में, ऑस्मोरेगुलेशन में किसका काम होता है, सब इन वैक्यूल्स का ही काम होता है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। थैंक यू सो मच।